Welcome back, everyone. This is your host and coach Aditya Sisodia, and we are live with another amazing Saturday night event where we have got a very amazing person and a very good friend of mine, Sogi. So put your hands together because Malini has joined us in our studio tonight. So, Malini, I'm waiting to host you. Please do come into our studio and drums rolling. Anytime Malini would be joining. Great. Congratulations, Malini. Good evening. How are you? I am good. And thank you so much, Malini, for taking out time on a Saturday evening and to share about your life experiences and to talk on such a powerful The topic. pleasure is all mine to that you brought me to this platform, Aditya. Great, And great. And yes, Malini, please, please. and it's always great to connect with the audience who are taking out their time to listen to us. That I would say. Ye- So gratitude to all of you who are present here. Yes, absolutely, absolutely, Manli. And ladies and gentlemen, Manli is a very good friend of mine, and I have personally learned a lot of things. And not only that, Manli is quite a talented person. So, Manli, please share a bit about yourself because मुझे नहीं लगता मैं आपके इंट्रोडक्शन को जस्टिस दे पाऊंगा. So, Manli, प्लीज अपने बारे में थोड़ा सा बताइए. Well, I am an ICF PCC executive coach by profession, and along with that, I'm a wellness mentor too. My journey of wellness Mhm. started when I was just 17. So I started off with Reiki and then I continued learning. And along with that, I am mother of two wonderful daughters and I am a budding singer. So I Wow. am living my life to the fullest. और टैरो कार्ड का पॉश ट्रेनर का उसका भी प्लीज बताइए. हाँ, मैं 10 साल से टैरो प्रैक्टिशनर भी हूँ और अब पढ़ाती भी हूँ टैरो को। और मैं टैरो हम्म. के थ्रू हीलिंग भी सिखाती हूँ, जो कि अपने आप में एक बहुत ही ब्यूटीफुल मोडालिटी है, काफ़ी पावरफुल हीलिंग होती है वो। और उसके साथ में अब मैं एक पॉश ट्रेनर हूँ और आई मीन आई हम्म. वुड से पॉश सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर आई वुड से। सो आई एम हेयर टू एम्पावर women, to हम्म. support them in any and every way I can. Very good, very good. And Manli, please guide our audience like what is tarot, what is posh, what is coaching. प्लीज क्योंकि हमारी काफी ऑडियंस जो हमें अभी लाइव ट्यून इन किया और जिन्हों जो हमारी रिकॉर्डिंग देखेंगे उनको आइडिया नहीं है इन सारी चीजों का तो प्लीज गाइड कर दीजिए. बिल्कुल आदित्य, coaching is all about the person who is sitting in front of you, first thing. हम्म. And it is हम्म. the power of questions which raises the awareness of not just the coach, but the coachee as well. And they हम्म. co-create an environment and and a journey together, I would say, to reach हम्म. to a common goal or a destination. हम्म. So, coaching is all about coaching what they think, how they are looking at an issue, or anything they हम्म. want to explore in their life. And हम्म. the role of a coach here is to just create a space wherein they can be themselves and to ask हम्म. questions based on what they are talking about, how they are opening up. So I would say it's a wonderful experience, and if you want to take that experience, Aditya and me both are here, so you can connect to any one of us. And I'm sure that a lot of our friends from Coach Fraternity are also there. So we are more than, I mean, we welcome you to join us, and if you want to experience it, please do. And when it comes to wellness, when it comes to tarot, yeah, it is, I would say, future reading, which generally people do. And it is a reading related to the past and present also, because when you open tarot cards, a lot of things come into light. And even those things come into light which you already know, but you're not ready to accept. हम्म. So once again, it is a journey which is inwards. हम्म. You reach to the root cause and then you work on that, and or there can be a counseling session for the same after the tarot session. So not हम्म. necessarily everybody goes for a healing. So if you don't want to go for healing, that's absolutely fine. You can sit for the counseling, you can sit for the coaching, and you can explore what is still unexplored within you.
I would say. And Posh? Yeah, Posh is about the workplace. So Posh comes into action when there is, where if there is an organization which has, you can say, more than 10 employees, and some of them are women also, and they are protected about their rights and everything. Then, of course, they create an ICC, which is Internal Complaint Committee, and if the organization is small, then there is a local committee which comes into action, and Posh plays a major role over there because it is based on that. It is a law which came into existence in 2013. And now, yes, corporates as well as startups both are following it. So it is making the workplace much more, you can say, safe and women friendly. So Manli, आज जो आपने ये टॉपिक लिया है, द पावर ऑफ क्वेश्चन, डू वी आस्क क्वेश्चन टू आवरसेल्फ एंड अदर्स? इसके पीछे थोड़ा सा अपना आइडिया शेयर कीजिएगा. आदित्य, व्हाट हैपेंस इज दैट जब भी एक बच्चा बड़ा हो रहा होता है, उसको एक डूज और डोंट्स की लिस्ट बताई जाती है, और एक बहुत मेजर डोंट होता है कि क्वेश्चन मत पूछना, कि जैसा बड़ों ने कह दिया तुम वैसा ही करना, जो हमारे घर में होता आया है उसको ही फॉलो करना, चाहे वो रिलीजन से रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके रियल लाइफ सिनेरियोज हो. हर जगह एक इंसान की जो जिज्ञासा होती है कि इसके आगे और क्या, या इससे अलग और क्या, उसको ये कह के शांत करा देना कि नहीं, ये तो ऐसे ही होता है. तो क्वेश्चनिंग जो होती है वो एक्चुअली लोगों को मना कर दी जाती है कि आप ना क्वेश्चन करो ही मत. या अगर आपने देखा होगा कि आपके जब रियल लाइफ में आप स्कूल गए और आपकी क्लास में एक बच्चा है जो बार बार उठ के टीचर से क्वेश्चन पूछता है, तो टीचर भी झल्ला के उसको बोलती है, अरे भाई चुप हो जा, तुम बहुत क्वेश्चन पूछते हो, तुम्हें तो सबसे पहले क्लास से बाहर निकाल देते हैं. भाई क्यों क्लास से बाहर निकाल देना चाहिए? क्योंकि जब कोई क्वेश्चन पूछता है तो सिर्फ उसी की अवेयरनेस नहीं खुलती, जो क्वेश्चन आंसर दे रहा होता है उसको भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज और बहुत सारे नजरिए समझ में आते हैं, जो कि लोग नहीं समझना चाहते, क्योंकि रटा रटाया आंसर हर किसी को हजम नहीं होता. तो जिसको हजम नहीं होता वो क्वेश्चन तो पूछेगा. ठीक है. और पावर ऑफ क्वेश्चन मैं क्यों बोलूंगी कि क्यों हम खुद को क्वेश्चन नहीं करते, क्योंकि बचपन से लेकर आप ये कह दीजिए कि लंबे समय तक एक माइंड ट्रेनिंग की जाती है कि नहीं, जो जैसा है ना उसको वैसे एक्सेप्ट करो, लाइफ जैसी आ रही है उसको वैसे जियो. स्पेशली व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स, क्वेश्चन मत करो, दूसरे को बुरा लग जाएगा. क्वेश्चन मत करो, सिचुएशन और ज्यादा एडवर्स हो जाएगी. क्या हो अगर हम वाकई में क्वेश्चन करें, और दूसरे से नहीं, अपने आप से करें. इज इट फन फॉर मी टू बी इन दिस सिचुएशन? व्हाट मोर कैन बी डन? व्हाट एल्स इज पॉसिबल? एंड हाउ विल इट गेट बेटर देन दिस? ये कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो कि हमें अपने आप से हर सिनेरियो में हर रोज पूछने चाहिए. और उसका एक रीजन है. जब कोई एडवर्स सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही होती है और आप उस सिचुएशन में आप खुद से पूछते हैं व्हाट एल्स इज पॉसिबल, इसके अलावा और क्या पॉसिबल है, तो आपको वो एवेन्यूज नजर आते हैं जिन पे अभी तक आपका ध्यान गया ही नहीं था. हर डेस्टिनेशन को पाने का रास्ता मुश्किल ही नहीं होता. जैसे कि हमें सिखाया गया है, घोट घोट के पिलाया गया है कि सक्सेस बहुत मुश्किल से मिलती है, पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है. ऐसा होता नहीं है. वैसे अगर आप एक क्वेश्चन पूछे कि इसको इजीली कैसे किया जा सकता है, तो आपके सामने वो रास्ते खुलेंगे जो कि उसको इजी बना देंगे. लेकिन जब तक आप अपने मन में ये ठान के रखेंगे कि नहीं, ये तो मुश्किल से ही होगा, तो यूनिवर्स कहेगा ठीक है भाई, ले भाई और मुश्किलें ले ले, और इसको मुश्किल से ही पाले. और जब आप खुद को क्वेश्चन करते हैं, या वन मोर थिंग, जब आप खुद को क्वेश्चन करते हैं तो आपका फोकस भी ना जो आप नहीं चाहते उससे हटके जो आप चाहते हैं उस पे चला जाता है. तो मान ली कैसे टाइप के क्वेश्चन पे हम लोगों को फोकस करना चाहिए खुद से पूछते टाइम, एंड कैसे टाइप के क्वेश्चन को हमें दूसरे से पूछना चाहिए? इज देयर अ पर्टिकुलर फॉर्मेट और एनीथिंग?
Yeah, definitely I would say. And the first and foremost thing is that a question always opens up new possibilities. Mm-hmm. तो आप जब खुद से भी क्वेश्चन कर रहे हैं या दूसरे से भी क्वेश्चन कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन बहुत छोटा सा 2 अक्षर का क्वेश्चन, 2 शब्दों का क्वेश्चन होता है, व्हाट एल्स, Mm-hmm. जो हम किसी भी सिनेरियो में किसी से भी पूछ सकते हैं, खुद से भी पूछ सकते हैं और दूसरे से भी पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी सिचुएशन में स्टक है, आपको नहीं समझ में आ रहा क्या, तो अगर आप अपने दिमाग में कई बार ये क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स कैन बी डन, तो आपको वो रास्ते Mm-hmm. जरूर नजर आएंगे। और यही क्वेश्चन Mm-hmm. अगर आप दूसरे से भी पूछते हैं तो वो उनको इस बात का बुरा नहीं लगेगा, उनको भी समझ में आएगा कि आप उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि प्रॉब्लम को एग्जैजरेट करने की। एक और क्वेश्चन होता है, हाउ डज इट गेट्स एनी बेटर देन दिस, ये Mm-hmm. इससे बेहतर कैसे हो सकता है। तो इसमें आपकी एक पॉजिटिव अप्रोच है, Mm-hmm. ठीक है। और यूजुअली क्या होता है कि जब भी कोई चीज आपको परेशान कर रही होती है तो आपका सारा ध्यान उस परेशानी पर होता है, ना कि उसके सोल्यूशन पे। तो जब हम ये क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ डज इट गेट्स एनी बेटर देन दिस, मतलब ये इससे और बेहतर कैसे हो सकती है, तो ये जो क्वेश्चन है, ये हमारा ध्यान उस प्रॉब्लम से हटाकर उसके सोल्यूशन ओरिएंटेशन पे कर देता है। और जैसे ही आपका फोकस यहाँ से हट के वहां गया, आपका दिमाग जो है वो न्यूरो पाथवेज क्रिएट कर देता है कि और भी पॉसिबिलिटीज हैं, और भी तरीके हैं सिचुएशन से बाहर आने के, और आप उनकी तरफ देखें और सोल्यूशन को निकालें, ना कि प्रॉब्लम को और बढ़ाएं। क्या क्या चीजें करनी चाहिए किसी को आपके हिसाब से? एक जब आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हो या आप किसी अच्छे दौर से गुजर रहे हो, दोनों में से दोनों ही सिचुएशन में आप ये क्वेश्चंस खुद से जरूर पूछें, क्योंकि अगर मुश्किल दौर है तो आप उससे बाहर आ जाएंगे, और अगर अच्छा है, सब अच्छा चल रहा है, तो वो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और आपको अगर लगता है कि आपका दिमाग नहीं काम कर रहा, तो प्लीज एक नोटबुक और एक पेन के साथ बैठें और अपनी सारी जो जो आपके दिमाग में आता जा रहा है, बिना उसको जज किए उसको लिखें। क्योंकि हम एक गलत चीज अपने साथ और करते हैं कि हम हर वक्त हर पल अपने आप को जज करते रहते हैं, हमने क्या क्या सही नहीं किया, हमारी क्या गलती है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ये सारी जो चीजें हैं, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं या ये सारी जो सोचें हैं, ये आपको और पुल डाउन कर देती है। और उसके उसके अलावा जब आप ये पूछते हैं कि इसके अलावा और क्या पॉसिबल है, तो आप सोल्यूशन ओरिएंटेशन में जाते हैं, और जब आप जो जो सोल्यूशंस आपके दिमाग में आ रहे हैं, वो सोल्यूशंस अच्छा, आप एक कागज पे लिखे। ठीक है, मान ली और मुझे एक हाँ, मिनट दीजिएगा, बस 1 मिनट दीजिएगा। सॉरी मान ली। सो मान ली हमें एक आया है, इज देयर अ राइट टाइम टू आस्क क्वेश्चन बाय फ्रॉम देयर अरूप इज बोस? नो राइट टाइम और नो रॉन्ग टाइम। क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन, यू कैन आस्क इट एनी टाइम एंड एवरी टाइम। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि आप उस लिस्ट को बनाइए, और उस लिस्ट में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो कि आपको बहुत क्लिक करेगा, और एकदम से आपकी बॉडी में, स्पेशली आपके हार्ट एरिया में, आपके चेस्ट एरिया में, आपको ना हल्कापन महसूस होने शुरू हो जाएगा। सो दैट इज योर आंसर, दैट इज योर सोल्यूशन, गो फॉर इट। क्योंकि हम जब कुछ भी सोचते हैं, हम जब कुछ भी करते हैं, तो हमारी बॉडी जरूर रिस्पॉन्ड करती है। और स्पेशली जब हम क्वेश्चंस करते हैं अपने आप से, तो बॉडी हमारी बहुत ब्यूटीफुली उनको आंसर करती है। चाहे आप एक चीज खा रहे हो, तो भी आपकी बॉडी आपको बताएगी कि वो चीज आपके लिए है या नहीं है, या आपको कितनी क्वांटिटी में खानी है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। और जब हम कुछ लेने जा रहे हैं, कोई बड़ी चीज या कोई छोटी चीज भी, तो भी आपकी बॉडी इक्वली आपको रिस्पॉन्ड करती है। कमी होती है सिर्फ उससे पूछने की, सिर्फ एक क्वेश्चन की। सो मान ली मुझे एक चीज बताइए, टैरो में आप हैं, आप कोचिंग में हैं, तो इन सब में क्वेश्चनिंग का क्या फायदा होता है? ये सारी चीजें बेस्ड ही क्वेश्चनिंग पर है।
Maybe that is the reason why I am here to discuss this topic, क्योंकि टैरो भी आपको जवाब तभी देगा जब आप उससे एक प्रश्न पूछेंगे. ओके. कोचिंग भी काम तभी करेगी जब आप प्रश्न पूछेंगे. और जरूरी नहीं है कि कोई और आपकी कोचिंग करे, आप खुद भी अपने कोच बन जाइए. एक आईने के सामने बैठ जाइए और अपने आप से जो पूछना चाहे वो पूछिए, एंड बी ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट अबाउट इट, एंड यू हैव ऑल द आंसर्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू. So what can be more empowering than that and more easier than that? एंड हम लोग अपने आप से सच बोलने से क्यों घबराते हैं मान ली, एंड जब सवाल पूछा जाता है तो हमारा दिमाग क्यों चलना बंद हो जाता है? क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द केसेस में आपने और मैंने देखे हैं कि जब हम किसी से कोई सवाल पूछते हैं तो अब अगेन पहले मैं आपके व्यूज जानना चाहूंगा, फिर मैं अपने व्यूज रखूंगा. आपको क्यों लगता है लोग सच नहीं बोल पाते हैं? उसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग राइट और रॉन्ग की ना कंडीशनिंग होती है, गुड बैड राइट रॉन्ग की, कि क्या तो आपके लिए अच्छा है और क्या तो आपके लिए बुरा है, और क्या आपको राजा बेटा बनाएगा या रानी बेटी बनाएगा, और क्या आपको एक बुरा इंसान साबित कर देगा. ठीक है, तो हमारा जो दिमाग है ना वो उसी में फंस के रह जाता है. और कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि आप कुछ कर रहे हैं लेकिन आपको इट इज नॉट रेजोनेटिंग विद यू. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने किसी ने छोटे बच्चे को थप्पड़ मार दिया, बहुत छोटी सी इंसिडेंट है, बहुत कॉमन सी इंसिडेंट है. अब आपको बचपन से ये सिखाया गया है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते. ठीक है, या माँ बाप का बच्चों को मारना ठीक होता है, ये उनके अच्छे के लिए होता है. लेकिन अब ये जो आपके सामने घट रहा है ये आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा, आप उसको नहीं झेल पा रहे, तो क्यों नहीं आप उसको प्रश्न करते कि ये कैसे सही है? क्योंकि ये सारी बातें अगर मैं अपना एग्जांपल भी लूं तो मुझे भी बचपन से होता था, हम सबके साथ हुआ. लेकिन जब मेरे खुद के बच्चे हुए तो मैंने ये चीज समझी कि मारना सोल्यूशन नहीं होता, उनके साथ बैठ के बात करना सोल्यूशन होता है. और आज के डेट में मेरी जो 14 इयर्स की मेरी एल्डर डॉटर है, वो और मैं फ्रेंड्स हैं, and I love that relationship with her. And why? Because she is open to question me anytime, and I'm also open to question her anytime, and we are open for discussion. We don't question to pull the other person down. We question so that we can look at a scenario in a different perspective, in a different light. जरूरी नहीं है कि बड़े होने के नाते आपका ही दिमाग बिल्कुल सही बातें सोच रहा हो. कभी एक छोटा बच्चा आके आपको एक बहुत खूबसूरत सी सीख दे के चला जाता है. सो हम लोग अपने ये बिलीफ एंड बिलीफ सिस्टम पे कैसे वर्क कर सकते हैं? क्योंकि मान ली जैसे बचपन से इतना कंडीशनिंग होता है कि हम लोगों को पता नहीं है क्या सही है क्या गलत है. तो इस पे आप क्या बोलोगे? एंड आपने क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस देखी हैं कि बिकॉज आप काफी लोगों से वर्क करते हो, आप डिफरेंट इंडस्ट्री में डिफरेंट लीडर्स से, डिफरेंट रोल्स से, फ्रॉम अ होम मेकर टू अ स्पोर्ट्स पर्सन टू अ सेलिब्रिटी टू अ बिजनेस ओनर. सो आपने कॉमन फैक्टर इन सारे सक्सेसफुल लोगों में क्या देखा है? क्योंकि जैसे कि टैरो हो गया या कोचिंग होगी, आप बस सवाल पूछते हो एंड सवाल के बेसिस पे वो लोग अपने सोल्यूशन लाते हैं. तो वो कॉमन फैक्टर क्या है जिसकी वजह से लोग अपने सोल्यूशन प्रोड्यूस कर पाते हैं? वो कॉमन फैक्टर ये है कि जब आप क्वेश्चन पूछते रहते हैं, जब आप लगातार क्वेश्चन पूछते रहते हैं तो उनको खुद को एक नई राह दिखती है जो कि उनके अंदर ही थी लेकिन वो उसको देख नहीं पा रहे थे. और रही बात माइंड कंडीशनिंग को डाउन करने की, तो ये आपके अंदर आपकी अपनी विलिंगनेस है. ये कोई बाजार में टॉनिक नहीं है कि मैं आपको नाम बता दूं, आप जाएं ले और पी ले और जी आ गई विलिंगनेस. ऐसा नहीं होता. ये आपके अंदर का करेज है, ये आपको ही जगाना है. और इसके लिए सिर्फ 10 सेकंड लगते हैं आदित्य, खाली 10 सेकंड. और उस 10 सेकंड में आपको चूज करना है कि नहीं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, तो इसके अलावा क्या हो सकता है, इससे बेहतर क्या हो सकता है. और ये क्वेश्चन हर सिचुएशन में काम करता है.
हम्म, अपने आप को पहले ये तो एक्सेप्ट करना करिए कि जो सामने हो रहा है या जो आपकी अपनी लाइफ में हो रहा है वो आपको नहीं समझ में आ रहा, इट्स नॉट गोइंग वेल विद यू। वो एक्सेप्टेंस लाइए, वो विलिंगनेस लाइए कि नहीं अब मुझे इससे बाहर निकलना है और मुझे इसके अलावा एक डिफरेंट चॉइस करनी है, बिकॉज एवरीथिंग इन योर लाइफ इज अ चॉइस। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी कि आप एक आइसक्रीम पार्लर में जाते हैं, आप वैनिला खाते हैं, आपको नहीं समझ में आते, कहते हैं नहीं नहीं भैया स्ट्रॉबेरी खिलाओ, वो भी नहीं अच्छी लगी हम्म, तो ठीक है चॉकलेट खिलाओ। चॉइसेस हैं आपकी। उसी तरीके से जिंदगी में कोई भी डिसीजन सही गलत अच्छा बुरा नहीं होता, वो सिर्फ और हम्म, सिर्फ उस मोमेंट की चॉइस थी जो आपने की, और उसको आप निगेट या उसको आप डिस्ट्रॉय और अनक्रिएट कैसे कर सकते हैं, सिर्फ एक दूसरी चॉइस करके। और वो दूसरी चॉइस करने के लिए अपने आप के अंदर वो विलिंगनेस लेकर आइए और अपने आप से प्रश्न पूछिए कि क्या आपको इस सिचुएशन में मजा आ रहा है, क्या आप खुश हैं इस सिचुएशन में। और अगर इन दोनों ही बातों का जवाब ना है तो इसके अलावा मैं ऐसा क्या करूं कि सिचुएशन बदल जाए, मैं कैसे इसका सोल्यूशन निकाल सकता हूँ, इसका सोल्यूशन क्या क्या है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपका अपना माइंड आपको दे देगा जब आप उस स्पेस में आएंगे तो, लेकिन वो स्पेस आपको खुद को क्रिएट करनी पड़ेगी। सो माली, मुझे एक चीज बताइए, मार्केट में इतने टैरो कार्ड रीडर्स हैं, इतने कोचेस हैं, इतने ट्रेनर हैं, तो एंड आप एक सीनियर प्रोफेशनल हैं, तो आपके हिसाब से किसी भी टैरो कार्ड को हायर करने के लिए, या अगर किसी को आपको हायर करना है या किसी और को एज ए कोच भी हायर करना है या एज ए ट्रेनर भी हायर करना है, तो किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? मैं ये नहीं कहूंगी कि किन किन चीजों का ध्यान रखिए, बहुत सारे आजकल तो मतलब सोशल मीडिया पे इतने वीडियोस हैं लोगों के, ठीक है, बहुत सारे लोग लाइव लाइव रीडिंग भी करते हैं, तो आप हम्म, उनके उनके ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं, उनके वीडियोस देख सकते हैं, उनके उनके फ्री रीडिंग में जाकर एक आध कोई क्वेश्चन पूछ के आप ये देख सकते हैं कि वेदर देयर एनर्जी इज रेजोनेटिंग विद यू और नॉट। और दूसरी बात ये होती है कि अब जैसे मान लीजिए आपके सामने 4 टैरो कार्ड रीडर हैं, तो उसमें से कौन सा नाम है जो आपको क्लिक कर रहा है, क्योंकि टैरो जो है वो एनर्जी है, वो एनर्जी बेस्ड साइंस है, तो जिसके साथ आपकी एनर्जी मैच हो रही है, जिसके साथ आपको लाइटनेस महसूस हो रही है, आप उसके पास चले जाइए। क्योंकि सबकी परिभाषा एक ही चीज को बोलने की अलग होती है, सबका हम्म, नजरिया एक चीज को देखने का डिफरेंट होता है, हम्म, ठीक है। तो आप जिसके पास भी जाएंगे वो आपको दूसरे से थोड़ा अलग आंसर ही देगा। हम्म, इसका मतलब ये नहीं है कि एक ने गलत बोला है और दूसरा सही बोल रहा है, नहीं, हम्म, दोनों ही सही है, क्योंकि एक मोमेंट पे आपकी एनर्जी कुछ और हो सकती है, दूसरे मोमेंट पे कुछ और हो सकती है। तो टैरो जो होता है वो प्योर एंड प्योर साइकिक साइंस होती है। अगर बहुत शिद्दत से आप किसी चीज को ना में लेकर चल रहे हो तो वो आपके टैरो में ना ही आएगी, क्योंकि सो जो टैरो रीडर है वो आपके साथ साइकिकली कनेक्टेड है और उसके बेसिस पर वो आपके रीडिंग कार्ड रीडिंग कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई अच्छा है या कोई बुरा है, हाँ बहुत सारे लोग होते हैं प्रोफेशन में जो कि बस ऐसे ही आके बैठ जाते हैं और उनको ज्यादा नॉलेज नहीं होती, तो इट इज देयर karma, इट इज देयर it is their thing, it is their decision, so I won't say it is right or wrong or whatsoever they want to do, let them do, but with whomsoever your energy expands, go with that. ठीक है। एंड मुझे एक चीज बताइएगा, अगर कोई किसी भी कोच या टैरो कार्ड रीडर के साथ वर्क करना चाहता है, पर्सनली इंगेज करना चाहता है, क्योंकि इट्स नॉट अ वन टाइम विजिट कि हाँ मुझे अच्छा लगा, शांति मिल गई, चलो चलते हैं। मिनिमम कितना कमिटमेंट एंड कितने दिनों या कितने महीने फोकस डेडिकेशन के साथ काम करना जरूरी है? When it comes to a coaching session, I would say a minimum of 10 sessions, a minimum, एंड क्योंकि गैप उसका क्या एक होता है? गैप आपके ऊपर होता है कि आप हफ्ते में 2 सेशन भी ले सकते हैं, हफ्ते में 1 सेशन भी ले सकते हैं, लेकिन उससे लंबा गैप मत दीजिए when it comes to हम्म, coaching. And how it is different from tarot is, क्योंकि एक कोच के पास जब आप जाते हैं तो आप एक माइंडसेट के साथ जा रहे हैं कि ये मेरा इशू है या ये मेरे इश्यूज हैं,
और इन पे मुझे बात करनी है। And you are in discussion, you reach a particular goal, there are solutions also, there are action steps also which you got to do. So इसीलिए आप एक टाइम फ्रेम लेकर चले। फॉर एग्जाम्पल आप 2 महीने का टाइम फ्रेम दें जिसमें आप मल्टीपल सेशंस ले सकते हैं, और उसके बाद आप देखिए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली 10 to 12 सेशंस में आपका इशू जो है वो एक रेजोल्यूशन तक यूजुअली पहुंच ही जाता है। And when it comes to tarot, for a lot of people, it is one-time thing. I have clients who are associated with me from past 10 years when I started Wow. off tarot. Mm-hmm. And they absolutely rely on me. And I mean, that is such an honor to be with such people that whenever they have a situation in their life, or even if they don't have a situation, they just want to go for a reading, they just connect with me and we sit and we do it. तो बहुत सारे लोगों के लिए टैरो वन टाइम थिंग होता है कि अभी इसके पास गए, अभी उसके पास गए, और जो क्लिक हुआ फिर उसके पास आप रुक गए। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको वन टाइम में ही वो चीज क्लिक कर जाती है और उसके बाद वो कहीं और जाना नहीं चाहते। Mm-hmm. सो दैट इज हाउ कोचिंग इज डिफरेंट देन टैरो। कोचिंग में आप एक पर्टिकुलर गोल को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, टैरो में आपका गोल नहीं है, आपका सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर्स है। क्योंकि जो गोल सेटिंग होती है वो हीलिंग पार्ट में आ जाती है, हर कोई हीलिंग में नहीं जाना चाहता। एंड मान ली मुझे एक चीज बताइएगा कि अगर कोई मतलब आपसे पॉश की ट्रेनिंग करवाना चाहता है, वर्क प्लेस सेंसिटाइजेशन की, तो उसमें उनको कितना कमिट करना होगा? क्योंकि लोगों के दिमाग में होता है ना, अरे गाइडलाइंस ही तो है, पढ़ लो समझ जाओगे। हाँ, जब आप गाइडलाइंस पढ़ लेंगे और आप उसको समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो अगर आप किसी सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर के साथ काम कर रहे हैं जो आपकी ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो उस टाइम पे आई मीन दिस ट्रेनिंग इज डन एटलीस्ट वंस इन 15 days. Okay. So when it comes to employee sanitization, I would say that at least 2 महीने में आपको 4 बार तो ये ट्रेनिंग शुरू में लेनी जरूर है। और अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज आते जाते रहते हैं, लाइक बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज भी होते हैं, तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ अब ज्यादा है या अब फुल पर है और आपने ये सारे लोग आपके साथ कम से कम कुछ टाइम पीरियड के लिए जुड़ गए हैं, आप प्लीज एक ट्रेनिंग जरूर उनकी कराइए। उससे उनको भी पता चलेगा कि आप सेफ्टी के लिए कितने जागरूक हैं, प्लस उनके लिए आपके साथ काम करना बहुत आसान हो जाएगा। एक रैपो बिल्डअप हो जाएगी जिसमें डेडिकेशन भी आएगी, क्योंकि जब कोई आपका ख्याल रखता है तो आपका भी अंदर से मन करता है कि हम भी उनका ख्याल रखें। सो मान ली मुझे एक चीज बताइए, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर कैसे सवाल आपको अपने फीमेल या कोई भी कोलीग से नहीं पूछने चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन आदित्य। इनफैक्ट मैं ये बोलूंगी कि कोई भी सवाल अगर आपको अनकंफर्टेबल फील कराता है, अगर कोई सवाल कोई आके आपसे पूछे और आपको बहुत अनकंफर्टेबल लगे, तो वो सवाल आप प्लीज दूसरे से कभी ना पूछें। जो पॉश के 5 फंडामेंटल्स हैं उसमें ये आता है कि ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट करें जिसमें किसी भी फीमेल को अनवेलकम लगे, क्योंकि आपने तो मजाक किया है लेकिन उसके लिए अनवेलकम है तो वो जाके आपकी कंप्लेन कर सकती है। चाहे आपने किसी को एक बारी एक या 2 बारी चाय पीने के लिए ही फोर्सफुली पूछा हो, अरे चलो ना मैडम, चलिए ना, अरे चलिए मैडम बहुत मजा आएगा, तो फिर जब मैडम आईसीसी के पास चली जाएंगी तो आपको भी बहुत मजा आएगा। ठीक है, अनवेलकम हो गया जेस्चर, अप्रोच, अनवेलकम जेस्चर होता है। फिर बहुत सारे लोग मजाक में कुछ भी जोक्स, पोर्नोग्राफी एक से इधर से उधर फोन पे करते हैं, वो मत करिए। ठीक है, आप किसी को घूर रहे हैं और घूरे जा रहे हैं और कोई आके आपसे पूछता है आप क्यों घूर रहे हैं, अरे मैं तो आपको देखते हुए कुछ सोच रहा था, तो प्लीज ऐसा काम भी मत करिए। ठीक है। ठीक है, और खासकर
ये एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, यंग क्राउड जो होता है ना, उनको बहुत मजा आता है एक दूसरे की पीठ पे हाथ मारना, कंधे पे हम्म, हाथ रख देना, ऐसे करके खड़े हो जाना। मत हम्म, करिए प्लीज, क्योंकि फ्रेंडली जेस्चर एक तरफ है, और ये जो चीजें हैं ये 110% किसी को भी कंफर्टेबल नहीं होती। हम्म, तो आपकी छोटी सी शैतानी पड़ जाएगी बहुत भारी। ठीक है। एंड एनी अदर थिंग्स विच यू वुड लाइक टू शेयर कि जिनको ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज ये ऐसा टॉपिक है जो हमारे करिकुलम में नहीं होता, एकेडमिक करिकुलम में नहीं होता है। ये वर्क प्लेस बिल्कुल में नहीं जाके होता। पता चलता है तुम्हारी एचआर से कंप्लेंट हुई है, तुमने बदतमीजी की। अरे क्या बदतमीजी की, मुझे तो पता भी नहीं था, मैंने तो बस इनोसेंट सवाल पूछा, चल रहे हो मेरे साथ? हाँ। सो इन चीजों पे लोग अपने आप को सेंसिटाइज कैसे कर सकते हैं? बिकॉज ऑनेस्टली ऐसी चीजों का कोई नॉर्मल अपने घर पे भी नहीं बात करता है। घर पे बात करना बहुत जरूरी होता है आदित्य, क्योंकि जब हम कहते हैं मैनर्स और एटिकेट्स, मैनर्स और एटिकेट्स किसी को सिर्फ आप बोल देने से नहीं होता। मैनर्स और एटिकेट्स होते हैं कि आप वाकई में किसी की इज्जत करें, क्योंकि जब आप किसी की इज्जत करते हैं, किसी को वो स्पेस देकर चलते हैं दैट दे कैन बी देमसेल्व्स, तब आपके अंदर से ये चीज आती है कि नहीं, मुझे ये काम नहीं करना। हम्म, सिर्फ मैं लड़का हूँ तो इसलिए मैं कुछ भी करूंगा, जो कि एक नॉर्मल माइंडसेट है भी मेल ओरिएंटेड सोसाइटी का, कि नहीं लड़का है तो बच जाएगा, लड़का है तो किसी को कुछ भी बोल सकता है, क्या हो गया, एक 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 वही तो, मतलब एक मजाक ही तो किया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंसेंट एक तो बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आप ऑब्वियसली, अब लोग पूछते हैं कि अरे हम मजाक करने से पहले भी कंसेंट ले क्या? हाँ तो बिल्कुल लीजिए, बिल्कुल लीजिए, लेके तो देखिए। और अगर सामने से ना आए तो उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। तो सामने वाला कैसे कहेगा मैं आपकी अभी खिंचाई करना चाहता हूँ और इसके लिए मैं आपसे आपका कंसेंट हाँ, लेना मैं आपकी चाहता थोड़ी हूँ? सी लेग पुलिंग करूं, और अगर सामने से कोई कह रहा है नहीं मत करो, तो ठीक है मत करो फिर। ठीक है। गुड गुड गुड। सो माली, फॉर आवर व्यूअर्स जिन्होंने हमें ज्वाइन किया एंड जो हमारी रिकॉर्डिंग देखेंगे, आप उनको अगर अपना टाइम बता सकें कि किस टाइम जनरली आप ऑनलाइन होती हैं एंड लोग आपको व्यूअर्स कैसे रीच आउट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ प्लेटफॉर्म पे, तो प्लीज शेयर कर दीजिए। I am on Facebook, I am on Clubhouse also, and I have my own club on Clubhouse by the name of Blessed Bee. Okay, and I'm on Instagram as well. So whomsoever who want to connect with me, they can DM me, and we can take it forward from there. And if you सो are an institution who want to invite me for a training or something, then of course we can. I mean, I have my email ID. If you want, I can write it down in the chat after this, and they can connect me. They can connect with me. सो जैसे ही हम इसको अपलोड करके पब्लिश करेंगे मान ली, तब आप चैट में डालिएगा क्योंकि वो हम पिन कर सकते हैं। ठीक जी है, उस बिल्कुल पे आप बिल्कुल। अपने क्लब हाउस के साथ भी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, it's a pleasure hosting Malini Rastogi, a very good friend of mine, a professional coach, a tarot card reader, a healer, and also a posh trainer. So अगर आपको इस सेशन में से वैल्यू मिली है तो प्लीज शेयर कीजिए किसी के साथ जो इसको देख के इंस्पायर होगा, एंड प्लीज आप मालनी को उनके इंस्टा पेज पे फॉलो कीजिएगा। Thank you so much, Aditya, for bringing me to this wonderful platform. लाइकवाइज लाइकवाइज मालनी, एंड हमारा तो ड्यू था कि हमें ये जुगलबंदी करनी ही करनी है, आपसे इतना कुछ सीखने को मिलता है। क्लब हाउस में भी आई हेयर यू आउट कि आप इतने अच्छे अच्छे आइडियाज शेयर करते हो, इंस्टा पे भी आप करते हो। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, डोंट मिस आउट, फॉलो मालनी रस्तोगी। Yeah, and one more thing I would like to share, that every Saturday at 10 a.m. I do free tarot reading on Clubhouse. So whomsoever wants to join me, please follow my club, and you will get a notification, as I always create a room for that in advance. So you can always join me at that time, and you can have a taste of my tarot. गुड गुड गुड। सो मालनी, अभी मैं जैसे ही इसको पब्लिश करूंगा, आप प्लीज इसमें कमेंट में अपना शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल मैं कर दूंगी। ग्रेट। सो थैंक यू मालनी, एंड बहुत ही जल्द हम दोबारा मिलते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज फॉलो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू मालनी रस्तोगी। Thank you so much, Aditya.
Bye. Good night. Bye Take care. bye. Take care, Bye. everyone. Have a nice evening. Bye.